Okay. Okay. So let's start with term frequency, inverse document frequency, and bag of words. So can you guys tell me what do you understand out of it before I move ahead? What is, can someone like tell me what is bag of words? What are all these? Anyone? Okay, it's fine. Bag. Just Yeah, sorry. I would like to say about bag of words. Yeah, please, Vivek, say. So the occurrence of words in a sentence, uh, that is what we call as bag of words, because in a like we are trying to create a matrix where we will be looking into it, the sentences, and if the same words repeated twice or more, so we will be you know uh, populating that number over the matrices. This is what we call as bag of words. Okay, okay. Yeah, okay. So basically, what I understood was we convert text data into numerical vectors, something like that, Mm-hmm. so that machine can understand it. Mm-hmm. Okay, 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 perfect. So basically, I'll just repeat and then we'll go to Excel, right? So bag of words is basically that suppose you get any text, okay. s- so basically text is what, it's a they're a combination of sentences, right? So you create eventually what you have to convert it into a number vector. So we'll create sentence one, sentence two, we'll create a table like this, okay. And then there will be a list of word token one, token two, token three, and so on, okay. And then in this matrix you will have some numbers, okay. So there are total three. So the first step is to get the count of each word or each token. Second step is to get the distribution, I would say ratio of the numbers distribution, and third is to get the inverse document frequency. So this is called uh, document frequency, right? So this is called document frequency, you can say, and or you can term frequency, you can also say term frequency. So these are the three things. So how are we going to do is, let me open the Excel. I have an example for you. We will walk through that example, and it provide idea about how many time my word appearing in my document, right? So exactly. So remember I told you to convert text into vectors. There are two methods. One is vectorization and one is bag of words. Bag of words, this particular thing focuses on the repetition of a word, okay, rather than the semantic meaning. So it does not matter. I mean, we are here just checking how many times a word is getting repeated. We are not bothered about what is the meaning of word one with respect to word two with respect to word three, right? We're not focusing on that. We're just focusing how many times a word is getting repeated, and based on that we are creating vectors. The word vector which I will talk in evening, that is about uh, the semantics. Yeah, Nikhil, please. Yes, sir. Sir, lastly, we multiplied the TF and IDF. Yes, yes. So we got one number. Yes, yes. So in the end, And you multiply basically TF yes, and and void. yes, sir. So we get one number for any attribute. So what is the what is it signifies that? It is this number which signifies. Signify, so you will have a data set like this, right? So for example, let's say whenever you have, let me let me reset. So when you have, let's for assume, let's say you have a data set where you have income, okay, you have population, and then there you have a flag, which is yes or no, okay. So how does this data look like? You have the numbers, income, for example, 2,000, 5,000, 8,000, like this. These are the numbers, right? And then your population, 1 million, 2 million, 3 million.
and then you have either 1 0 0 1, something like this, right? So what is this? This is numerical data. This has some relationship with this one, right? So for text, you don't have such numbers, so you convert the text column into like this. So for example, let's say you had 6 words, right? So you will create 6 columns. So word A, word B, word C, word T, word E, right? In the data set, and each of them will have some values. Are you getting? Yes, sir. Could you share the yesterday's slide that I- where I've back of the word? I've already shared the slide with you, the PPT Yes, that I, just show this here. Yes, sir. yeah. Yes, sir. Sir, here there is in the sentence two, natural is not appearing. Sorry? Sir, here in the sentence two, Hmm. natural word is not appearing. So there is a zero value is there. Yes. And in sentence one, like, is it? Yes, sir, I got this. Yeah. You got, so all these will be your variables. This will become your new data set, right? And so this all will become your new data set. What will, so this is a variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, right? And then you will have a flag whether yes or no, yes or no, 1 0 1 0. So we'll basically compare that how is this related to this one. Yes, sir. So could you share the next slide? Next Their slide. multiplication of TF and IDF is there. I have no other slide. Uh, yes, sir. Maybe it's referring to previous slide. So Yes, sir. Sir, my question was the IDF value. What is signifies the IDF value? When suppose my IDF value is less than one. Suppose one variable has a zero point 0.5 is my IDF value, and second variable is a zero point 0.7. So the difference is, I mean, is it a like suppose You in tell me. linear regression, linear Yes. linear model, this coefficient signifies the attributes like y, or I can say मतलब उसका जो हमें वेटेज पता चलता है, तो इसमें भी ऐसा होता है क्या सर? ऐसा क्वेश्चन था। यही होता है इन्वर्स डॉक्यूमेंट। आईडीएफ क्या होता है बेसिकली? टेल मी व्हाट इसका नंबर को छोड़ो, व्हाट डज आईडीएफ मींस? बेसिकली सर why is IDF used? Tell me. सर हमें पता चलता है कि मतलब हम जो रिपीटेड वर्ड है हम्म। सात्विक, आपने कुछ ऐसा समझाया था क्या कि जो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है वो ये बताता है कि कितनी बार ये वर्ड आया है, हाउ Yes. फ्रीक्वेंट, Yes. एंड आईडीएफ में आपने इसका रिवर्स बताया था कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट मेनी Basically टाइम्स क्या, इट इज yes. कमिंग, So एंड द कॉम्बिनेशन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वी गेट द कंपनसेटरी थिंग कि जहां पर वी आर नॉट गिविंग एम्फेसिस कि कौन सी वर्ड कितनी बार आया है, exactly. एंड वी आर कंपनसेटिंग इट विद आईडीएफ, समथिंग मैं इतना समझ पाई। Yeah, basically क्या होता है, your eventually it is your term frequency multiplied by inverse document frequency. Okay, your final value जो होती है आपकी जो हर टोकन की जो वैल्यू आती है, इट इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू आईडीएफ। एग्रीड और नॉट? या राइट। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या, अच्छा एक बात और, टर्म फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ओके, वो वर्ड मेरा फाइनल वैल्यू ये है, ठीक है? दिस इज माय न्यूमेरिकल नंबर्स। जितनी ज्यादा मेरी टर्म फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब सपोज एनएलपी वर्ड है, इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी इज वे हायर देन एनएलपी लाइब्रेरी। ओके, लेट्स से, तो जो मेरा फाइनल आउटपुट है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, उसमें इट विल से ना कि एनएलपी वर्ड हैज मोर रेलेवेंस एज कंपेयर टू लाइब्रेरी। यस यस नो गाइस, टेल मी। यस राइट। अभी हम लोग क्यों यूज करते हैं आईडीएफ? बिकॉज देयर कैन बी केसेस व्हेन वन वर्ड बिकम्स टू मच, जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे द हो गया, कोई एनएलपी भी वर्ड हो गया, बहुत बार यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिवली यूज हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में, सो वी पनिश इट, वी से कि ओके,
your frequency is higher, but what is happening? Let's say there are three variables, A, B, C. A is, let's say, excessively higher, so it will reduce the impact of B and C, correct? Let's say your आपका कैसे है? Let's say there is a variable y, it is equal to A की power 45, B की power 1, C की power 2, okay? Then आप मेरे को बताओ, क्या B और C से y पे ज्यादा impact पड़ेगा? No, A is already very high. Is already very high, right? तो अगर मेरे को, तो रफली y कैन बी सेट टू बी इक्वल टू A की पावर 45, करेक्ट? इफेक्टिवली, और यू कैन से प्रोपोर्शनल, इफ नॉट इक्वल यू कैन से प्रोपोर्शनल. B और C का उतना इम्पैक्ट नहीं है, राइट और रॉन्ग? Yes. गाइस बाकी बताओ मेरे को प्लीज. नहीं क्लियर तो बताओ प्लीज, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन. ये डाउट सेशन नहीं है ना, इसमें पूछो तो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो. गाइस या तो हाँ बताओ या तो ना बताओ प्लीज, एटलीस्ट लेट मी. नहीं, इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि टीएफ में टर्म फ्रीक्वेंसी सपोज मेरी इंक्रीज हो रही है. अभी टीएफ भूल जाओ, अभी टीएफ भूल जाओ. अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस लेफ्ट एग्जांपल. देयर इज y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 45 into b into c स्क्वायर, ओके? अब एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर मैं b में स्लाइड चेंज होगा तो क्या y में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा? नहीं आएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ पावर लेस है. c में करोगे तो आएगा? नहीं आएगा. नहीं a में आएगा. थोड़ा भी चेंज करोगे तो, अज्यूमिंग कि सब कुछ ग्रेटर देन 1 है, मतलब लेट्स अज्यूम कि ईच वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो यू कैन से ना कि y इज a इज हेवीली ड्राइविंग y, करेक्ट? करेक्ट. तो हम इसी चीज को रिड्यूस करना चाहते हैं. वी आर सेइंग कि ठीक है, एक वर्ड पावरफुल कर रहा है, बट लेट्स डू वन थिंग, हम a को 45 की जगह लेट्स मेक इट a को हम 20 कर देते हैं, और b को 1 की जगह b को हम 10 कर देते हैं, और c को 2 की जगह हम लेट्स से 15 कर देते हैं. दिस इज व्हाट TF IDF इज. You have lot of tokens, you have frequency. Normal scenario में let's say y equal to a into b into c, या y equal to a square into b into c. So it is good, no problem there, right? Problem arises when one particular thing dominates too much. When one particular word dominates too much, you lose the impact of other words. इसलिए उस रिडक्शन के लिए हम ये आइडिया फैक्टर को ऐड करते हैं. That makes sense. So जितना ज्यादा TF होगा IDF उतना ही कम हो जाएगा, to reduce it. ये दोनों काउंटर चलते हैं. TF क्या मेरी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, ये मेरी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? सो ओवरऑल मेरा V की वैल्यू स्टेबल रह रही है. वाई? बिकॉज ये दोनों काउंटर फोर्सेस की तरह हैं. एक बढ़ा रही है तो ये डिक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू को. क्यों? क्योंकि हमने नीचे फॉर्मूला कैसे लिया है, ln ऑफ नेचुरल. सो बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला? ln ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइड बाय कितने में अवेलेबल है, सो दैट इज DF, राइट? सो ये इनवर्स जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें DF को आप नीचे ले आए हो. इसमें जो नीचे है 1+1 वाला, वो आप नीचे लेके आ गए हो, राइट? सो जस्ट अ सेकंड. Okay, is it clear or not? Please tell me. I can explain this again, या थोड़ा और बेटर तरीके से if you want, but tell me, is it clear or not? या you want one more explanation? एक बार आप अगर वैल्यूज फॉर्मूले में लगा के समझा दो. कौन से फॉर्मूले में? IDF का क्या फॉर्मूला है? IDF का फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे आप मेरे को बताओ. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू एन एग्जांपल, ठीक है? इसको छोड़ो, हम एक्सेल पे चलते हैं. ओके, let's do a case scenario starting से. Okay, you guys can see my screen, right? Hello? Hello? Yes, we can see it. Okay, so let's say we have 3 statements.
Statement 1, statement 2, statement 3. So we have 3 documents, okay? Document 1 says cricket is a popular sport. Document 2 is many people watch cricket matches. Document 3 is cricket players wear protective gear. Right? So we have three statements. What was our first step? Can someone tell me? इसको वर्ड्स में टोकनाइज करेंगे. Okay. My first step will be to get the distinct tokens which are present there and create a column. So what are those distinct tokens? Cricket is a popular sport. Okay. यहां तक आ गया. सेकेंड लाइन में क्या है? many people watch क्रिकेट ऑलरेडी आ चुका है तो हम क्रिकेट को यहीं पे छोड़ देंगे. वॉच मैचेस प्लेयर क्रिकेट अगेन क्रिकेट आ रहा है तो मैं क्रिकेट को नहीं काउंट कर रहा. प्लेयर्स वियर प्रोटेक्टिव गियर. इतना क्लियर है अभी कि हमने टोकन्स कैसे बनाए हैं? These are all distinct tokens in my whole 3 documents combined, distinct tokens. ठीक है. तो स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव करते हैं या लोअर केस वो सब जो अब वो सब मैंने अभी करके नहीं दिखाया. मतलब ये स्टॉप वर्ड है बेसिकली. दिस इज स्टॉप वर्ड, दिस इज स्टॉप वर्ड. अभी आई एम नॉट रिमूविंग इट, आई एम जस्ट शोइंग कि विदाउट रिमूविंग स्टॉप वर्ड पूरा कैसे दिखेगा. ओके. स्टॉप वर्ड रिमूव होता है. अभी आई एम नॉट डूइंग दैट. अभी आई एम जस्ट शोइंग यू द होल डेटा सेट की अगर आप स्टॉप वर्ड रिमूव नहीं वैसे होता है. द फर्स्ट स्टेप इज टू टोकनाइज then remove stop words, but I'm not removing stop word just to show the example, right? That you can remove later on. वो बाद में भी रिमूव कर सकते हो. वैसे भी स्टॉप वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रिमूव इट. ओके. सो इतना यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद क्या है? वी हैव 3 documents. Document 1, 2, 3. I'll calculate the frequency of each word in each document. So क्रिकेट का फर्स्ट में एक बार आ रहा है, करेक्ट? इस कितनी बार आ रहा है? यार आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा मेरा? वन टाइम आ रहा है. is once आ रहा है. इस 1 आ रहा है, ए 1 आ रहा है, पॉपुलर 1 आ रहा है, स्पोर्ट 1 आ रहा है, करेक्ट? बाकी सब 0 हो जाएंगे. डॉक्यूमेंट 2 में क्रिकेट आ रहा है 1 टाइम. ओके. 0 0 0 ऐसे करके 1 1 मैंने बना दिया. ओके. सिंपल मेरी ग्रिड बन गई कि कौन सा मेरा कितनी बार आ रहा है, कहां पे आ रहा है. इज इट क्लियर? नाउ Yes. next step is term frequency. What is term frequency? Can someone tell me? Number of word occurrence in a sentence divided by total. Term frequency, that means number of words in a Number sentence. of of- tokens Yeah, in statement divided by the right? total. Total tokens in that statement, correct? Total tokens in that statement. So basically first make कितने tokens है total? 1 2 3 4 5. First में how many tokens are there? 5, right? Second में कितने हैं? 1 2 3 4 5, again 5. Third में कितने हैं? 1 2 3 4 5, again 5. Is it clear? अब क्रिकेट फर्स्ट में कितनी बार अपीयर कर रहा है? 1 टाइम्स. So we'll do 1/5, that is 0.2. 1/5, 0.2. 1/5, 0.2. 1/5, 0.2. 1/5, 0.2. बाकी सब 0 हो जाएगा. ठीक है? इतना क्लियर है? Yes. सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. डॉक्यूमेंट 2 के लिए भी 0.2 क्रिकेट क्योंकि उसमें आ रहा है 0 0 0 0.2 0.2 ऐसे करके आ जाएगा. सिमिलरली वी हैव फॉर डॉक्यूमेंट 3 एज वेल. इज इट क्लियर अभी तक? So mostly it will be always the values will be same. Like we are taking the unique words. एग्जांपल दिख रहा है इसलिए वैल्यूज आर लुकिंग सेम. इट इज नॉट ऑलवेज. व्हाट इफ ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है. मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं. एंड Repetitive हम unique लेते हैं तो फिर रिपीट करेंगे नहीं. तो नंबर बढ़ जाएगा ना. यहाँ पे 1 आ रहा है क्रिकेट, क्या पता क्रिकेट 2 टाइम्स आए. एंड एक स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक स्टेटमेंट नहीं होती है. एक तो मैं केवल एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ. Okay.
What if this was three statement? Cricket is a popular sport. It is played in India. India is a big country, and there are 7 country. How many these countries in the world? Particular document के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. अभी तो मैं केवल आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया कि अज्यूम कि डॉक्यूमेंट 1 में केवल एक लाइन है. डॉक्यूमेंट 1 के अंदर बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं. आप लोग क्या कंफ्यूजन है बताओ मुझे. आई ट्राई टू क्लियर. मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि अगर एक ही सेंटेंस डॉक्यूमेंट 1 में अगर तीन ही से अगर मान लीजिए फुल स्टॉप से कनेक्ट करके तीन भी सेंटेंसेस हैं, तो अगर हम टोटल वर्ड्स काउंट करेंगे एंड हम यूनिक अगर हम ले रहे हैं, तो जो हमारा रेशो 0.2 है, सपोज वो वर्ड्स का सेम आएगा. कैसे या आएगा? वो कर कैसे सकता है. आएगा? टेल मी. क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट. क्रिकेट is played in 20 countries. Let's say आपके पास ये है. अब सेम कैसे आएगा आपके पास? आप मेरे को बताओ. आपको वो सेम दिख रहा है इसलिए आपको सेम लग रहा है. अभी इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये इस भी रिपीटेटिव है. 7th played, 8th in 9 20 and 10 countries. So total 10 tokens हो गए आपके पास. करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट में. नहीं समझ में आया? तो अभी हम यूनिक लेंगे, लाइक एक टाइम क्रिकेट लेंगे, इस 2 टाइम्स है तो एक ही बार लेंगे. लाइक डॉक्यूमेंट 1 अगर है और इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो ये हाँ. हमारा सिंगल लाइन नहीं आएगा. सिंगल लाइन मतलब? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. जैसे डॉक्यूमेंट 1 है, आपने क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट लिखा और उसके बाद लिखा क्रिकेट इज प्लेड इन 20 कंट्रीज. ये पूरा जो है ये डॉक्यूमेंट 1 है. ये पूरा डॉक्यूमेंट 1 है ना. अब इसके बाद जब हम इसको कॉलम्स में डालेंगे तो क्रिकेट 1 टाइम ही आएगा. क्रिकेट 1 टाइम ही आएगा. यस. इस भी एक ही बार आएगा. तो इस भी मेरे को ये पूछना है कि जब हम यूनिक वर्ड्स लेंगे, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको जब हम आउट ऑफ टोटल करेंगे तो वो रेशो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आएगा. डिनोमिनेटर सेम रहेगा सबका 10, बट काउंट चेंज होगा ना. क्रिकेट कितनी बार आ रहा है? क्रिकेट 2 बार आ रहा है तो क्रिकेट विल बी 0.2. ओके. आपका इस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है तो इस 0.2 हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस पॉपुलर? पॉपुलर एक ही बार आ रहा है तो वो 1/10 होगा. दैट इज 0.1. ठीक है, अभी मेरे को समझ आ रहा. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. मैं दोबारा मैं या आप एक छोटा सा एग्जांपल देके कंफ्यूज मत हो. एक डॉक्यूमेंट कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स. जरूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट हो. वो केवल ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएगी तो बहुत सारे टोकन हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. कॉर्पस जो होता है वो मतलब ऐसे कॉर्पस मींस बुक. कॉर्पस मींस बुक सिंपल वर्डों में. ठीक है. कॉर्पस मींस बुक एंड डॉक्यूमेंट मींस योर पेज इन अ बुक. ओके. आपके पास एक बुक है 500 पेज की. सो योर कॉर्पस इज ऑफ 500 डॉक्यूमेंट्स. अंडरस्टूड. पक्का? सोच लो पहले, कोई बात नहीं. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्लीज अगर आप लोग सेशन में आए तो प्लीज सारे डाउट्स क्लियर करके जाओ, वरना फायदा नहीं है. कोई डाउट है अभी किसी को इसमें? प्लीज आस्क मी. आईडीएफ में मैं कंसिडर कर रहा हूँ. तो आईडीएफ में बेसिकली आप देखो यहाँ पे रुको आईडीएफ पे आते हैं. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है? एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने केवल 1 दिखाया है तो उसमें टोकन्स बढ़ जाएंगे. ये नंबर्स कैसे आ रहा है? ये नंबर डोंट अज्यूम कि नंबर ये रेशियो सेम रहेगा, हमेशा अलग होगा. किसी में क्रिकेट 2 बार आ रहा है, किसी में 4 बार आ रहा है, किसी में 5 बार आ रहा है, किसी में एक वर्ड एक बार आ रहा है किसी स्टेटमेंट के अंदर. आप एक पेज उठाते हो बुक का. एक पेज के अंदर एक वर्ड क्या पता 10 बार आ रहा हो, दूसरा वर्ड केवल एक बार आ रहा हो, तीसरा वर्ड 6 बार आ रहा हो. ऐसा पॉसिबल है ना? तो वही रेशियो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि
उस पेज के जितने वर्ड्स हैं उसका कितना परसेंटेज वर्ड इज क्रिकेट, कितना परसेंटेज वर्ड इज, कितना परसेंटेज वर्ड इज ए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Guys, yes, no, नहीं समझ में आया, प्लीज टेल मी. I got it. You got it? Others, like there are 10 to 11 people on call, can tell me, did they get Yes, it sir. or? Let me check who all are there on call. Okay. Clear? So Chandan, Lavanya, Nikhil, Rohan, Sakshi, Swati, Vijay, Vivek, is it clear? Yes, sir. पक्का ना, मतलब 100% श्योर, कोई डाउट तो नहीं है? Yes, yes, yes. मैं अभी आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ इसी कॉल पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, ओके. नाउ टर्म फ्रीक्वेंसी तक सबको कैलकुलेशन पता चल गई, करेक्ट? कैसे करनी है? एनी डाउट टिल हियर? ओके, नाउ कमिंग टू इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज IDF. ओके, अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड बहुत बार आ रहा होगा तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा मेरे रिजल्ट को, करेक्ट? सपोज ये मेरा फाइनल रिजल्ट टेबल है जहां पे मेरे को यस या नो कुछ फ्लैग करना है, तो जो डॉक्यूमेंट जो वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वो ज्यादा इंपैक्ट कर रही होगी उसको, करेक्ट? एज सिंपल एज दैट. तो अब इसको काउंटर करने के लिए, अभी ये छोटे से एग्जांपल है, इसमें नहीं दिखेगा वो प्रैक्टिकली, राइट? बट थिंक ऑफ व्हेन यू हैव वेरी लार्ज टेक्स्ट, आपके पास एक पेज में 500, एक पेज में मतलब 200 वर्ड के पेज हैं और ऐसे करके 500 पेज हैं, तो कितना ज्यादा टेक्स्ट रिपीट होगा, राइट? तो यू नीड टू गेट rid ऑफ दैट इन दैट केस. So now we calculate IDF. IDF के लिए there is document count and there is IDF, basically how it is calculated. So इसमें क्या होता है? log of number of total documents, okay? Total documents for each word divide by, हम क्या करते हैं कि ये वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, DF. नाउ इसके बाद +1 भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, आई टेल यू कब करते हैं कब नहीं करते हैं. बट DF मींस क्रिकेट कितने डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 डॉक्यूमेंट्स हियर, document 1, document 1, document 3. Okay, so for cricket, let's say if I have to calculate my IDF, what will be my IDF? Log of total how many documents are there? 3. Three, sir. क्रिकेट कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है? All 3. Three, sir. सो लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0. Zero, sir. 0, तो बेसिकली 0 होता है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इज. अब मैं इसको छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट मैनी, ठीक है? लॉग, हाउ मेनी टोटल डॉक्यूमेंट्स आर देयर? Three. 3. एंड मैनी कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है? One. मैनी 1 के अंदर आ रहा है, राइट? तो यू डू log of 3/1. सो log of 3/1 कितना होता है? 1.1 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ऐसे ही हर वर्ड के लिए आप इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालोगे. आर यू गेटिंग इट? अब एक चीज Yes, देखो, sir. अब एक चीज नोटिस करना, क्रिकेट सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी थी क्रिकेट की, करेक्ट? उसका आइडियल वैल्यू सबसे कम हो गई है, 0. आप नोटिस कर रहे हो? बाकी सब सब 1 टाइम्स थे, तो बाकी सबकी इससे ज्यादा है. अगर हम कोई और एग्जांपल देखेंगे तो इफ योर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ओके, मीन योर आइडियल वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है? यहाँ पे वी हैव क्रिकेट, क्रिकेट मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसकी आइडियल वैल्यू लीस्ट है, एंड बाकी सबकी क्योंकि सेम है तो इससे ज्यादा है, 1.1 हो गई है. लेट्स अज्यूम, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, मेरे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, 5 डॉक्यूमेंट्स. सो आई हैव लेट्स से 5 डॉक्यूमेंट्स. I have 3 words. Let's say there is a word cricket, there is a word
let's say food, there's a word enjoy. Okay, let's say cricket मेरा 5 में आ रहा है, ठीक है, फूड मेरा केवल 2 में आ रहा है, लेट्स से फूड मेरा 3 में आ रहा है, और एंजॉय मेरा केवल 1 में आ रहा है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द TD IDF वैल्यू फॉर दिस क्रिकेट? log Zero, 5 sir. by 5. Log of 5 by 5 by 5. 5 by 3, 3. 5 by 5, right? Yeah. Which is equal to 1, log of 1 which is equal to 0. 0. 0. Second के लिए it will be log of 5 by 3. Yes. Can someone tell me what is the value of log of 5 by 3? कोई नेट से चेक करके बता दो. और मेरे को एक बार बताना log of 5 की वैल्यू भी. log of 5 थर्ड के लिए क्योंकि log of 5 by 1. मेरे को एक बार log 5 की वैल्यू बता दो, एक बार log 5 by 3 की वैल्यू बता दो. कोई रफ नंबर ही बता दो. So first का around Sir, 0. 2.5, 0.25. 0.2. फर्स्ट का 0.25, Yes, sir. log of 5 by 3, log of 1 point नहीं यार, Log 2 Log- के nearby No, no. आएगा sir. log 5 by 3, it's about 0.22. 0.22 0.22. ओके हाँ ठीक है, पॉइंट 0.22. 22. okay, let me write it down. So you said this is 0.22, ठीक है, And Yes, sir. log Yes, sir. 5 by 1, 0.69. 0.69, 69. ठीक है. अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, क्रिकेट सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, करेक्ट, उसकी आईडीएफ वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई. 0. थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो उसकी आईडीएफ वैल्यू बढ़ गई, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और कम हुई तो उसकी आईडीएफ वैल्यू और बढ़ गई. आप ये देख रहे हो पैटर्न? मेरे को टेबल बना देता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो. क्रिकेट, फूड, एंजॉय, ठीक है, ये कितने डॉक्यूमेंट्स, इसका डीएफ क्रिकेट का कितना था? 5, 5, sir. 3 है, इसका 1 है. 3, 1. एंड आईडीएफ वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? इसकी 0 आ रही है, इसकी 0.22 आ रही है, इसकी 0.69 आ रही है. 0.069. डू यू सी अ पैटर्न हियर? Can you guys see a pattern? Yes, sir. What is that pattern? जितना ज्यादा डीएफ उतना कम आईडीएफ। ठीक है, तो जितना ज्यादा डीएफ उतना कम, जैसे जैसे डीएफ डिक्रीज हो रहा है मेरा आईडीएफ इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है मैं उसको पनिश कर रहा हूं, जिसका पनिशिंग फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया है. ठीक है, जो थोड़ा सा कम है, मॉडरेट है, जो कम है उसका उसको मैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको मैं स्केल अप कर दे रहा हूं उसको. यस, नो, मे बी, समझ में आएगी नहीं? Yes. आई थिंक लोग को नहीं समझ में आया. प्लीज गाइस पूछ लो. बेसिकली आप वही कर रहे हो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे मतलब पेनलाइज कर रहे हो और उसके हाँ. आईडीएफ को कम कर रहे हो, और सिमिलरली अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई हमारी तो उसके आईडीएफ बढ़ गई. करेक्ट. अब टीएफ इंटू आईडीएफ इसका क्या हो जाएगा? 0. करेक्ट. इसका 0.22 दिस विल बी 0.66, दिस विल बी 0.69. ओके, तो अगर मैं एनालाइज करूंगा तो आई विल सी कि एंजॉय, बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? क्रिकेट, फूड, एंजॉय. इट इज समथिंग अबाउट एंजॉयमेंट ऑफ द थिंग व्हाइल हैविंग क्रिकेट एंड फूड. ओके, तो इसमें एंजॉय का जो है वो सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया अभी आप लोगों को टीएफ आईडीएफ कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों है? यस। नाउ कम द फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप पे कि log ऑफ n बाई df होता है कि 1 प्लस df होता है. अब एक बात बताओ,
अभी मेरा आईडीएफ 0 हो गया, करेक्ट? तो आई एम सेइंग कि क्रिकेट वर्ड का रेलेवेंसी मैंने खत्म कर दिया, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? क्रिकेट वर्ड ओके, आई एग्री, बहुत बार ज्यादा रिपीट कर रहा है तो कम कर दो, 0 मत करो। तो कम के लिए आप क्या करते हो, नीचे +1 ऐड कर देते हो, राइट? सो इट विल नेवर बी 1। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 टाइम्स है तो 5/6 हो जाएगा, तो दिस विल नेवर बी 0, कुछ और वैल्यू आ जाएगी इसकी, बट इट विल नेवर बी 0, राइट? तो उस 0 से बचने के लिए, ताकि वी डू नॉट लूज आउट एनी ऑन एनी टोकन, वो हम नीचे +1 ऐड करते हैं। These will lead to the negative value, right? Because denominator is greater than the numerator. तो एटलीस्ट बेटर देन 0 ना, मतलब नेगेटिव कर रहा है कि ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं डाल रहा, ठीक है? 0 तो होता है कि इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। And how does the negative value plays the role in this whole statement? क्यों? भाई लेट्स से यू गेट अ माइनस, लेट्स से यू गेट -0.1, यहाँ पे 0.66 है, 0.66 से 0.69 है। सो हाँ, आई मीन व्हाई डज नॉट इट प्ले योर यस नो में? इट विल प्ले अ रोल, व्हाई नॉट? आई मीन यू हैव अ नंबर, सो इसका नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उससे। नहीं समझे आप? All right. Got it. Did you get it or not? Tell me. You So- didn't get it. So, preventing, like suppose cricket is repeating 5 times, right? Okay. And after applying the ITDF, so the value got decreased here. Yeah. So, to prevent such things, we have applied DF plus 1 inside Yes. log, right? In the बेसिकली denominator. DF+1 इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मिलेट से मेरे पास 3 टोकन है, टोकन ए, टोकन बी, टोकन सी। ओके, Mhm. अभी क्या हो रहा है, मेरे पास लेट्स से अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बस 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? टोकन अभी मेरी लेट्स से मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। ए मेरा 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है, बी मेरा 5 बी लेट्स से मेरा 8 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है, सी मेरा 5 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब अगर मैं केवल log ऑफ n/df करूंगा तो मेरा जो फाइनल वेरिएबल है इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। और जब मैं tf इंटू idf लूंगा मेरी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मेरा tf इंटू idf लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरे को हर टोकन के लिए, हर वर्ड के लिए एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आनी है, सो दैट आई कैन पास इनटू द मशीन। Correct. अब जब 0 ही कर दूंगा तो आई एम सेइंग कि ओके ए ऑल्दो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने उसको 0 कर दिया। सो आई डोंट वांट टू मेक इट 0, आई वांट टू मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, 10/11, log of 10/11 आ जाएगा। सो देयर विल बी सम वैल्यू बट नॉट 0, so that when you multiply these two you do not lose out any token. Correct, correct. प्लीज आप लोग सोच लो एक बार, नहीं आ रहा आई विल डिस्कस अगेन, बट क्या ये समझ में आ रहा है? गाइस प्लीज टेल मी, हाँ ना कुछ तो बताओ। नहीं आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। लावण्या, निखिल, रोहन, साक्षी, स्वाति, विवेक, इज इट क्लियर? पक्का Yeah. पूरा क्लियर? I'm clear. सेशन के बाद ये तो नहीं बोल रहे कि क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया, फालतू में वीकेंड बर्बाद कर दिया? No, it's clear. इट्स क्लियर, राइट? ओके, सो लेट्स डू वन असेसमेंट देन। आप लोग सॉल्व करो अभी। I have 3 statements. Okay. Are you guys on your laptop? Yes. Yes. Can you create the whole document frequency, inverse document frequency, and everything? Yes, it's just let me On note Jupyter? down. Sorry? On Let me Jupyter? note down. नहीं, make it on Excel. Excel पे बनाओ, कोई Jupyter की जरूरत नहीं है। I want चाहे 10 लोग ही हैं, मैं चाहता हूँ 10 के 10 लोग बनाए, सबको ही बनाए। प्लीज ओपन योर लैपटॉप्स। जब आप खुद से क्रिएट करोगे आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, मैं बस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि पहला स्टेप है डिस्टिंक्ट वर्ड्स,
distinct words. Okay. Second is what? Bag of words. So basically, a bag of words and frequency. And I mean, you can say frequency. Third is term frequency, TF. Fourth is IDF. Fifth is TF into IDF. आप लोग को ये 5 चीजें कैलकुलेट में करके शो करनी है. यू हैव टू टेल मी द रिजल्ट. करके कंट्रोल सी करके चैट बॉक्स में कंट्रोल वी करो. देन आई वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन. I might ask someone to share his or her screen, so please सारे solve करो please. I want you, if you guys are there on call, या तो call drop कर दो, अगर call पे हो तो solve करो, because I might ask someone to share his or her screen. So I want at least you guys understand by end of this session कि क्या होता है. What is frequency? What is IDF? Why IDF is important? How much time do you guys need आपके हिसाब से? 10 minutes. Okay. Take 10 minutes, take 15 minutes, but solve, come up with some answer.
How many distinct tokens are there? 30. 13? Yes. Can you cross check? Yeah, it's 13. Machine learning is a fascinating field. Many application use models are trained using data. मेरे तो 14 आ रही है यार. 14 for me too. Oh. Check which one did you miss? Did you guys miss anyone? Can you cross check? बाकियों की क्या आ रही है? I heard only from 3 people. Sir, A article A read. Okay. बाकियों के क्या आ रहे values? How many distinct tokens are you having? Guys, please respond. 14 आ रही है सात्विक. Okay, sir. Doubt session में आओ तो please at least speak up, please. Okay. So you have 14 tokens, right? What will do next now? Tell me. अब next क्या करेंगे हम? Next क्या करेंगे? सर बैक ऑफ वर्ड करेंगे हम डॉक्यूमेंट में वो पर्टिकुलर वेरिएबल एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं है वो दिखाएंगे. if this present then we call as a 1, if he is absent then we call as a 0. Absolutely incorrect. मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो प्रेजेंट है तो 1 नहीं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो 0. अगर प्रेजेंट है, जितनी बार प्रेजेंट है उतना काउंट डालना है, 1 0 नहीं करना. मैं इसीलिए बोला था सेंटेंस 1 में देखने में तो और करने में बहुत फर्क है, इसलिए दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस एक्सरसाइज. तो अगर आप देखोगे सेंटेंस 1 में मशीन लर्निंग इज ए फैसिनेटिंग फील्ड. तो मशीन इन द फर्स्ट सेंटेंस मशीन इज रिपीटेड वंस, लर्निंग See इज guys, रिपीटेड. इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रेजेंट है तो केवल 1 करेंगे. वी हैव टू टेल हाउ मेनी मशीन वर्ड आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. How many words are there with machine in first document? 1. Learning कितनी बार है फर्स्ट डॉक्यूमेंट में? Once. बाकी सब 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. Now tell me other statement 2 के लिए क्या होगा? For many one applications one, use one, machine learning 1 and except all that 0. Many 1, application 1, That is one, use use, one, machine 1, learning 1. okay. And third में 1 1 1. 1 1 fire 1 from models. So Sir, is 0, A 0, From fascinating models 0, it will field be 0, mini 0, application 0, one. use One. 1. 1 1 1. Correct. This will be your data set. आ रहा है आपका? Yes. Yes, Guys, sir. remember, अगर मेरे डॉक्यूमेंट 1 में मशीन लर्निंग इज मशीन 2 बार आ जाए तो मैं उसको 1 नहीं छोड़ूंगा, राइट? आई विल हैव टू मेक इट 2. ओके, so remember this is how many times machine is present in the first statement. It does not mean if machine is present then make it 1. ये 1 0 नहीं का गेम नहीं है. अभी आप लोग बहुत छोटा सा केस देख रहे हो, एक्चुअल में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. आई कैन नॉट ड्रॉ एवरीथिंग हियर इन एक्सेल, राइट? इसलिए मेरे को छोटा एग्जांपल लेके दिखाना पड़ रहा है. बट आप खुद सोचो, फर्स्ट में अगर आपके पास 500 स्टेटमेंट है, 500 स्टेटमेंट ऐसे 3-4 डॉक्यूमेंट में है, तो कितने सारे टोकन हो जाएंगे, राइट? तो 1 1 वैल्यू नहीं आएगी, 20 30 40 50 ऐसे आया करेगी, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so what is this called? This is called your bag of words. Now after that, what will you do?
After bag of words, what will you do? Tell me. TF. What is TF? Do one thing. एक काम करो, इसमें ना मशीन लर्निंग को 2 बार कर दो, ठीक है? मशीन ठीक है। मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ स्टेटमेंट के अंदर एक बार करो। मैनी एप्लीकेशंस यूज एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस 3 बार कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, मशीन लर्निंग मॉडल्स, मैं बस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूँ वर्ड्स की। ओके, सो अब नाउ आपका बैग ऑफ वर्ड्स, ये आपका डिस्टिंक्ट टोकन्स ये रहेंगे। नाउ लेट्स रिकैलकुलेट। ओके, फर्स्ट में मशीन कितनी बार है फर्स्ट स्टेटमेंट में? 2 बार। 2 2 sir. लर्निंग 1 टाइम्स, 1 time. इज इज 1 टाइम, ए 1 टाइम, मशीन बाकी सब 1 रहेगा, करेक्ट? Right. Yes sir. सेकेंड में मशीन कितनी बार है? 1 टाइम। 1 sir. मैनी इज 1 टाइम। 1 time. Okay, application is how many times? 3 1, times. 2, 3, 4 times, right? 4 times. So application is 4 times in second statement, and use is 1 time, models nahi hai iske andar. Okay, now next come to third statement. Machine 1, 1 learning ek hi baar hai. Okay, model. models is 1. Let's make it not, this is not model, this is models. Okay, किसी को डाउट हो रहा हो तो लेट्स मेक इट मॉडल्स। सो मॉडल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स है मॉडल्स। आप क्रॉस चेक करो एक बार। 7 it is. 7 है, राइट? तो मॉडल्स हाउ मेनी टाइम हो गया? 7। दिस इज योर व्हाट? बैग ऑफ वर्ड्स, करेक्ट? इज इट क्लियर? now what will you calculate next? You'll calculate term frequency. बताओ क्या आ रही है रिजल्ट आप लोग का? Sir, how many tokens are there in statement 1? Can you tell me? 6 tokens. 6. जस्ट सम ले लो इसका, ठीक है? इसका सम ले लो, सिंपल सी बात है, इक्वल टू सम ऑफ दिस रो। 7 हो गए, नॉट 6। 7, 8, 13। ओके, जस्ट क्रॉस चेक, आपने कोई नंबर मिस किया होगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द रेशियोज? टेल मी। What is 0.28. what is the value here? 0.28. Sorry? 2/7. Yeah, so someone was saying something else. Can you repeat? 0.28. 2/7 basically, right? Yeah. 2/7. ठीक है, मैं डेसिमल को बाद में सॉर्ट कर लूंगा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.14. 1/7. 7. Okay, is what? 1/7. This is what? 1/7. रियल में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन और ऑलरेडी करेगी, बट यू शुड नो कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। 1/7 फील्ड इज व्हाट? 1/7 मैनी 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, नाउ टेल मी
सेकंड केस में what will it will be 1 by what? 8. Okay, मैं मैनुअली के कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग यू 1 by 8. करेक्ट. थर्ड क्या हो जाएगा? 0, 4 0 5 0 6 0, then again it will be 1 by 8. then applications का क्या हो जाएगा? 4 by 8, right? use का will be equal to 1 by 8. models will be 0 0 0 0 0. ठीक है. now statement 3 पे आते हैं. this is equal to what? 1 by what? 13 is equal to 1 by 13. 0 0 0 0 0. now this is 7 by 13. so this is what? 7 by 13 equal to 1 by 13 equal to 1 by 13 equal to 1 by 13. मैं बहुत स्लो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. सो प्लीज मेक श्योर गाइस आप लोग समझो इसको. ठीक है, तो ये बन गया मेरा टर्म फ्रीक्वेंसी. मैं इस पे डेसिमल वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दूंगा. I'll make it like up to 3 decimal places. ये आ रहा है सबका? Are you guys getting this? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, आ रहा है. आ रहा है सबका ये? Now what is my next step? IDF. IDF for each token I will have to calculate. Correct? So मैं क्या करूंगा? मैंने टोकन उठाए. Okay. Now tell me how many. What is the value of n here? N is number of documents. How many documents are there? 3 documents हैं. 3, sir. So it will remain same for everyone. Correct? Yes, sir. Now for that what I have to calculate? DF. Okay. Now tell me what is the value of DF? What is DF का मतलब क्या होता है? What is DF? term which is repeating number of times. Machine is present in how many documents? 3. 3. 3. Correct? You can see ना यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3. करेक्ट. लर्निंग भी आप देखो, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा. 3. इसका क्या वैल्यू क्या होगी? 1. 1. एक की 1, फैसिनेटिंग की 1, फील्ड की 1, मैनी की 1, एप्लीकेशंस की 4 की 1. एप्लीकेशंस की वैल्यू 4 होगी 1 होगी? टेल मी. 1. 1, sir. Why not 4? कि how many times it is present. We are Exactly. So it's not कि क्या frequency, it's how many times it is present. Okay. So 1. अभी I think सबकी 1 ही है इसके बाद से. आ गया? So what will be the value of IDF for this? अब this is equal to log. हम log ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. Okay. So let's say वो हम बाद में करते हैं, पहले काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं. ठीक है, पहले रेशियो ले लेंगे. So n by df. Correct? This is equal to what? 3 by 3 by 3. 3. मैं एक रेशियो ले लूंगा इसका. राइट? Yes, sir. ये आ गया. अब नाउ आई विल हैव IDF. एक मिनट. ओके, अभी दिख रही है ना स्क्रीन प्रॉपर? IDF क्या होगा मेरा? लॉग ऑफ व्हाट? Log of n by 1 plus. अभी हम केवल रेशियो ले कर रहे हैं. DF अभी केवल DF ले रहे हैं. ठीक है. लेट्स डू वन थिंग. अभी हम केवल रेशियो लेते हैं. ओके, लेट्स डू DF plus 1. या फिर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा. सो दिस इज नॉट. सो दिस इज व्हाट?
this has to be equal to n divided by df plus 1, plus 1. करेक्ट? Yes, sir. अब ये करोगे फिर आप पूरा स्कैन पूरा यहाँ तक ले आओगे इसको. You got the values. Okay. Now what you do? You'll take log 10. Okay. नंबर क्या है? ये ले लिया. ये आ गई आपकी वैल्यूज, आपकी आईडीएफ की वैल्यू फॉर ईच टोकन आ गई. ठीक है, आपने ये कर दिया. देन लेट्स इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं. 176. ओके, सो कैन वी ड्रॉ इन्फ्रेंस? यहाँ पे जहां पे एप्लीकेशंस की वैल्यू ओके या अब एक चीज देखो, एप्लीकेशंस है जो राइट, इसकी आईडीएफ वैल्यू सेम आ रही है एज कंपेयर टू अदर्स. व्हाई? क्योंकि उसका काउंट, अब दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, डज नॉट, अगर एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमें तो उसकी वैल्यू हाई रहेंगे. बट अगर वो थ्रू आउट द कॉर्पस अगर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है देन हम आईडीएफ उसको बेसिकली नीचे लेके आएगा. क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे चाहे 4 होता चाहे 5 होता, डज नॉट मैटर, इट विल ब्रिंग इसकी जो डीएफ वैल्यू विल रिमेन 1 ओनली. करेक्ट? तो इट विल नॉट चेंज. Yes, sir. तो हाउ डज आईडीएफ क्या कहते हैं? डिफरेंट, एक सिंगल वर्ड जब मल्टीपल बहुत सारे पेजेस के अंदर प्रेजेंट है तब उसकी वैल्यू को नीचे लेके आ रहा है वो. आर यू गेटिंग इट? मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे. जैसे सपोज एन, ठीक है, यहाँ पे एन आप लिखे हो नंबर ऑफ सेंटेंसेस, राइट? डी लिखे हो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट? डी इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, डी इज ये वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स के, आउट ऑफ ऑल 3 डॉक्यूमेंट्स कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वर्ड प्रेजेंट है. अच्छा, ठीक है. तो एप्लीकेशंस तो फिर आप देखोगे, अच्छा वंस, हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज एप्लीकेशंस रिफ्लेक्टिंग इन ओनली थर्ड सेंटेंसेस. यस, ओनली सेकंड. या सॉरी, इन सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस. तो एप्लीकेशन की वैल्यू डजंट मैटर, चेंज नहीं होगी. ठीक है, मतलब उसका आईडीएफ विल नॉट ब्रिंग इट डाउन क्योंकि वो सारी वैल्यू एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है. तो क्या पता उस पर्टिकुलर पेज में वो उसकी इंपॉर्टेंस हो, बट ओवरऑल तो इसलिए वो उसको ओवरऑल डिक्रीज नहीं कर रहा है. ओके. आर यू गेटिंग दिस? या. अब हम फाइनल हमारा आईडीएफ फैक्टर क्या बनेगा? सो लेट मी हैव दिस लाइक, अब हम क्या कर देंगे, जो जो मशीन का सिंपल सी बात है, हर टोकन का कुछ है राइट. यहाँ पे फॉर एग्जांपल सो जो भी वैल्यू जो इस कॉलम में है उसको यू विल मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका आईडीएफ वैल्यू, राइट? ध्यान से अगर देखें हम तो आर वी डूइंग करेक्ट? यस, वी आर डूइंग करेक्ट. अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मेरे को पहले ये बताओ. Okay, this is not right. So ठीक है, तो दिस विल बी योर आईडीएफ वैल्यू फाइन, जो आपकी फाइनल टर्म फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल बनेगा, ऐसा बनेगा.
अब एक काम करते हैं, इसको हम एक थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखते हैं एक बार कि कैसी तो अगर आप देखो जो मशीन वर्ड है, ठीक है, टेक्निकली वो इसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव कोरिलेशन है। और जो मॉडल्स वर्ड है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे, तो मॉडल वर्ड का मीनिंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस थिंग, ठीक है। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रीन टू रेड, आर रेलेवेंसी ऑफ वर्ड्स आर डिक्रीजिंग। सो ग्रीन वाले वर्ड्स आर मोर रेलेवेंट, एज जितना रेड डार्क हो रहा है उतना कम रेलेवेंट हो रहे हैं वर्ड्स। सो इस पूरे स्टेटमेंट में एप्लीकेशन एंड मॉडल्स दे कैरी मोर वेटेज देन एनी अदर इज एज पर टीडीएफ आईडीएफ, ठीक है, दीज कैरी मोर वेटेज। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोग मेरे को गालियां दे रहे हो। गाइस कुछ बता दो, तो नहीं आ रहा समझ में तो। नहीं समझ में आ रहा है, आप ठीक है। इसको मत छोड़ो कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में, प्लीज डोंट हैव दैट एटीट्यूड। अभी का क्लियर को और करो और आगे बढ़ो। लाइफ पे इतना टाइम नहीं है कि पहले 8 घंटे का सेशन करोगे फिर 8 घंटे रिकॉर्डिंग देखोगे। अभी नहीं समझ में आ रहा, आई एम देयर टू एक्सप्लेन। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको है क्लियर ऑन कॉल? ओके ओके ठीक है। सो आई गेस आई एम अज्यूमिंग यू दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस टीडीएफ आईडीएफ? सो प्लीज आप अपने खुद से भी एक्सेल में एक बार ट्राई करके देख लेना, राइट? I hope this TDF IDF is clear to everyone now. Like whatever the way I created, I showed you कि मेरे इतने बैग ऑफ वर्ड्स में ये 2 वर्ड्स मेरे मोस्ट रिलेवेंट हैं जो ग्रीन में। दिस इज एज पर TDF IDF। तो वो मशीन लर्निंग को उतनी वेटेज नहीं दे रहा है। इज इट ओके? कोई बता सकता है इसका ड्रॉबैक क्या है TDF IDF का? कहाँ पे थोड़ा अपना कॉन्टेक्स्ट लूज कर सकता है, कहाँ पे दिस इज नॉट अ गुड थिंग? यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि सी इट इज गिविंग द वेटेज फॉर अनकॉमन वर्ड्स, and second is here we are not storing any semantic information. यहाँ अगर आप देखो, हम हमारा पूरा डॉक्यूमेंट मशीन लर्निंग के बारे में था, ठीक है। वो मशीन लर्निंग को उसने इतना पनिश कर दिया, उसको रेड में कर दिया, राइट? आइडियली इट शुड नॉट हैव, करेक्ट? तो हमेशा TDF IDF डज नॉट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। अच्छा होता है, इसीलिए ऑलवेज TDF IDF अलॉन्ग विद सिमेंटिक मीनिंग देखते हैं हम लोग। तो सिमेंटिक मीनिंग की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है कि अच्छा मशीन लर्निंग इज फैसिनेटिंग फील्ड, तो फैसिनेटिंग क्या है? हम तो एक बात, फैसिनेटिंग की जगह मैं ABCD लिख देता तो उसकी भी सेम वैल्यू आती, right? So problem with TDF IDF is it is not checking the meaning of words. It is just going by the frequency of words, which is good in some cases, but not good always. And that is why we use word vectors along with this to identify most relevant words, which I'll talk about in evening. Is it clear right now? Can you please give me the sentences which you have put over the yeah, because I'm trying by my own. मैंने तो आपने 10 मिनट मांगे थे, मैं तो 25 मिनट दे दिया, अभी तक हुआ नहीं आप लोग से? नहीं मैं वो जस्ट देख कैलकुलेशन चेक कर रहा था, कुछ मैंने तो किया है। मैं चैट बॉक्स में डाल दिया, चेक इट। मैं तो इतना स्लो बताया यार, मतलब गाइस प्लीज ट्राई। तो ठीक है, सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू गाइस कि TDF IDF इन शॉर्ट, अभी आपको TDF IDF आपको कोई बनाने को नहीं देगा कि ओके बैठ के TDF IDF क्रिएट बनाओ। TDF IDF ओनली मींस दैट
you will focus on the frequency of words. जो वर्ड ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, आप उनको बेसिकली कह रहे हो ये ज्यादा रेलेवेंट है. ठीक है, पहली चीज ये, बस कोई वर्ड इतना भी ज्यादा फ्रीक्वेंट ना हो जाए सो दैट वो उसको वो अकेला डोमिनेट करे, इसलिए आप आईडीएफ लगा देते हो ताकि वो बैलेंस रहे. Okay, the whole Bago word and TDF IDF word is just based upon the frequency. It just takes care of frequency. वो meaning की बात ही नहीं करता है. That is its drawback, and that is where word vectors come in, and which we will talk about in evening. Is the whole picture clear to you guys? Yes, sir. Yes. Vivek, Vijay, Lavanya, Rohan, Chandan. Yeah, it's clear. ठीक है, सो ट्राई दिस ऑन योर ओन एज वेल. ट्राई क्या मतलब, कॉन्सेप्ट समझ जाओ कैसे बना है. आपको खुद से कभी भी कोई बनाने को नहीं देगा. सिंपल पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, वो टीडीएफ वेक्टराइजर यूज करने के लिए, बस उसको लगा देना होता है, अपने आप रिजल्ट आ जाता है. आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, राइट, सो मेनी स्टेटमेंट्स. आप सबका टोकन थोड़ी करने बैठोगे. दैट इज द थिंग. But you should know how it works. So TDF, IDF, as simple as that, it just focuses on the frequency. It tells you words which are more frequent, they are more relevant to the document. It just says that. इसका बस simple सा point है, the words which are more frequent in a document are I mean they carry more I mean impact in the document as per it. And the drawback, it says it just ensures that a word does not go beyond a certain limit. That's why it introduces IDF. Okay, it does not talk about semantic meaning anywhere, so that's why this is not the best method. We use word vectors along with it, which I will talk, as I mentioned, we'll talk in evening. So any other doubt apart from this topic, anyone? Are we good? So can we, so if you want, you can drop off, right? Let's connect in evening 4:30, 4:45 p.m. Please join on time, and प्लीज मेक श्योर आप ये सब कवर करके आओ, क्योंकि वहां पे फिर मैं शाम को मैं इतना टाइम इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा. शाम को आई विल नॉट इवन एक्सप्लेन दिस, आई विल जस्ट गिव अ क्विक समरी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड. ओके, इट्स गुड दैट यू गाइस केम इन. आपको जितनी क्लैरिटी से बताया कि बाकियों को नहीं पता ये चीज, टू बी ऑनेस्ट, राइट. बाकी बस अभी सोच ही रहे होंगे पता है, अब उनको नहीं पता. अच्छा, अगर किसी कोई पढ़ के आएगा तो इट्स गुड, बट आप लोगों को मैंने पूरा एग्जाम्पल एकदम एक्सेल में एक एक वर्ड करके दिखाया है. इतनी डेप्थ में आई डोंट थिंक कहीं पे मिलेगा. तो बट राइट, सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुद से एक एग्जाम्पल ट्राई करना है तो घर पे कर लेना, बट आई हैव शोन यू एनफ कि व्हाट इज दिस. ओके, सो just have this and let's connect in evening. Thanks for joining. I'll share the video recording with you guys if you want. Okay, so thanks everyone, you can drop off. Yep. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Nikhil. Thank you, sir. Thanks everyone. Hello.